Hello children, welcome to my channel Economics with Purnima Sharma. Yesterday I explained to you excess demand, deficient demand, right? What is excess demand? What is deficient demand? Excess demand when AD planned is more than aggregate supply corresponding to full employment or AD required to maintain full employment. This is excess demand which create inflationary gap in the economy. The price level increases in the economy. Because of increase in price level, what happen? The commodity may remain unsold because the price may exceed beyond the अफोर्डेबिलिटी ऑफ द कॉमन पीपल. जब कॉमन पीपल की परचेसिंग पावर से बाहर हो जाती है प्राइस लेवल, तो क्या हो जाएगी? कॉमोडिटी अनसोल्ड रह जाएगी. और जब कॉमोडिटीज अनसोल्ड मार्केट में रह जाएंगी तो क्या होगा कि स्टॉक जो है प्रोड्यूसर्स के पास वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बियॉन्ड द डिजायर्ड लेवल, प्लान्ड लेवल. अब वो क्या करेंगे? नेक्स्ट साइकिल में अपने इन्वेंट्रीज को करने के लिए अप टू द डिजायर्ड लेवल दे विल रिड्यूस द आउटपुट एंड दैट मे कॉज द फॉल इन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी. सो इट इज नॉट गुड एट ऑल, right? In the same way, deficient demand I explained to you. What is deficient demand? When AD is less, AD planned is less than aggregate supply corresponding to full employment or aggregate demand required to maintain full employment. This is what deficient demand. This is what deficient demand. That deficient demand may create the problem of deflationary gap, and because once the price falls very rapidly, right? This is what deflationary gap. And when the price will fall, right? So the what will happen? The commodity again, what here? The price demand will fall, price will fall, right? Again the commodity will remain unsold in the market, because when the demand will fall, output also will fall. Output, employment, income will fall, and because of fall in income again will create the problem of deficient demand, right? Which create the problem of fall in the price level in the economy, right? So these two are the economic problems, right? And which need to be addressed, to be controlled by the authorities of the economy. And which are the authorities to control? That is RBI, monetary authority, apex body to control the monetary system and banking structure of the economy, and another side the government of the country, right? Government also, by using its fiscal policy, used to control these two economic problems. So today what topic I selected to teach you, that is reasons. Reasons for excess demand, reasons for deficient demand. We should know the reason so that we can have a control over it, right? So first, together I will teach the reason of both. AD. What are the components? 4 are the component, that is C plus I plus G and plus net export. These are the 4 components of AD. C, consumption demand, demand for consumption good by household sector. I, demand for capital goods by the firm. G, the demand by the government to serve the society, right? Net export, that is export minus import. This is the net demand by foreigners for domestic goods, right? So this is what? Here 4 components of AD, right? So excess demand, any increase in AD, आपको क्या समझनी है? सिर्फ ट्रिक. आपको लर्न नहीं करना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना है ट्रिक, राइट? ये सी का क्या है? कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन आई टॉट यू, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस बी इंटू वाई. ठीक है. अब ये ऑटोनॉमस कंजप्शन जो है ये तो चेंज नहीं होगा बच्चों. ऑटोनॉमस है क्योंकि ऑटोनॉमस दैट इज कांस्टेंट, राइट? डज नॉट अफेक्टेड विद द लेवल ऑफ इनकम. कम टू बी. व्हाट इज बी हियर? बी इज एमपीसी. बी क्या है बच्चों? एमपीसी है. और एमपीसी क्या है? दैट इज चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, right? Out of additional income, what proportion of additional income the people used to consume? This is what MPC, right? अगर मान लो ये क्या? इंड्यूस कंजप्शन, ये है एटोनॉमस कंजप्शन. इंड्यूस कंजप्शन कैसे आप निकालेंगे?
MPC into disposable income. Disposable income, that is what? Which is left with the people to satisfy their demands. Consumption plus saving, जो उसके अकाउंट में आती है वो क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम होती है, जो वो अपने खर्च के लिए यूज करता आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, राइट? दिस इज वाई डिस्पोजेबल इनकम. इट्स नॉट इनकम, इट्स डिस्पोजेबल इनकम, याद रखना, राइट? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इंड्यूस कंजप्शन. तो अगर मान लो एक्सेस डिमांड मीन्स इंक्रीज इन एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, तो अगर एमपीसी बच्चों बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? इंड्यूस कंजप्शन बढ़ जाएगा, बी टू वाई, बी की वैल्यू बढ़ी तो इंड्यूस कंजप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी. इससे क्या बढ़ेगा? कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा, और एडी बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, राइट? अब आ जाइए इधर डेफिशिएंट डिमांड, द सेम थिंग. दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन, राइट? अगर बी की वैल्यू यानी कि एमपीसी की वैल्यू फॉल हुई तो ये इंड्यूस कंजप्शन क्या होगा बच्चों? फॉल. अब इंड्यूस कंजप्शन फॉल हुआ तो सी की वैल्यू फॉल होगी, सी की वैल्यू फॉल हुई तो एडी फॉल होगी, विल कॉज डेफिशिएंट डिमांड, राइट? Come to B, come to Y. Is suppose the Y value disposable income क्या है? After paying the taxes. अगर मान लो टैक्स रेट गवर्नमेंट क्या कर देती है? कम. टैक्स रेट कम हुआ, ठीक है, तो वी हैव टू पे लेस अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट आउट ऑफ अवर डिस्पोजेबल इनकम. तो हमारे पास क्या बचो? हमारे पास ज़्यादा इनकम बच गई. सपोज मैं 10% देती थी अपने 1 लाख का, ठीक है, तो कितने मेरे पास बचते थे? 90,000. अब गवर्नमेंट ने क्या किया? 5%, ठीक है, तो मेरे पास कितना पैसा बचा? 95,000. एंड दिस 95,000 इज मेंट फॉर मी टू रेज द डिमांड, ठीक है. तो टैक्स रेट फॉल हुआ, ये कौन सी टैक्स? डायरेक्ट टैक्स है, राइट? डायरेक्ट टैक्स हमारा फॉल हुआ, टैक्स रेट सिंपल आप लिखिए, टैक्स रेट फॉल हुआ तो इंड्यूस कंजप्शन फॉल हो गया, इंड्यूस कंजप्शन आपका बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट फॉल हुआ तो वाई की वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई. डिस्पोजेबल इनकम हमारी बढ़ गई क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा पैसा बच गया, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी. डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी तो बी इंटू वाई यानी कि इंड्यूस कंजप्शन बढ़ गया. अब इंड्यूस कंजप्शन बच्चों बढ़ा तो सी की वैल्यू बढ़ गई एंड विल मे कॉज एक्सेस डिमांड. इधर आ जाइए, अगर मान लो यहाँ पर एमपीसी की वाई की टैक्स रेट, यहाँ पे क्या होगा? टैक्स रेट बढ़ जाएगा, टैक्स रेट बढ़ गया, राइट? अब टैक्स रेट बढ़ेगा बच्चों तो क्या होगा? हमारी y की वैल्यू डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास कम बचेगी खर्च करने के लिए. यानी कि पहले 10% हम दे रहे थे और अब हम दे रहे हैं 20%. पहले मेरे पास कितना बच रहा था आउट ऑफ 1 लाख? 90,000. अब टैक्स रेट क्या किया गवर्नमेंट? सपोज बढ़ा दिया तो अब मेरे पास कितना पैसा बच रहा है? 80,000. कम पैसा बच रहा है, कम डिस्पोजेबल इनकम हो गई. अब डिस्पोजेबल इनकम बच्चों कम हो गई तो सी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हुआ तो एडी भी कम हो जाएगी. एडी कम हो गई मे कॉज डेफिशिएंट डिमांड. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बी क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इफ विल बी हायर, induced consumption will be high, C will be high, AD will increase, may cause excess demand. यहाँ पे propensity to consume, MPC की वैल्यू क्या हुई? कम. अब MPC की वैल्यू कम हुई तो induced consumption कम हुआ, C कम हुआ, AD कम हुआ, may cause deficient demand. यहाँ पे टैक्स रेट, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट propensity to consume, B, सेकेंड पॉइंट टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स रेट किसको इम्पैक्ट करेगा? डिस्पोजेबल इनकम को. तो टैक्स रेट इफ इट इज रिड्यूस्ड, disposable income will increase in disposable income will increase the induced consumption, and increase in induced consumption means increase consumption means increase AD may cause excess demand. इधर यहाँ पे आ जाइए, टैक्स रेट यहाँ पे क्या गवर्नमेंट करेगी? बढ़ा देगी सपोज, तो क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई,
डिस्पोजेबल कम इनकम कम हुई तो ये जो इंड्यूस कंजप्शन है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इंड्यूस कंजप्शन कम हुआ तो सी की वैल्यू कम हो गई, सी की वैल्यू कम हुई तो एडी की वैल्यू कम हो गई, एडी की वैल्यू कम हुई तो मिडिल क्लास डेफिशिएंट डिमांड। सिंपल। तो फर्स्ट 2 पॉइंट किससे बने? सी से। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टैक्स रेट, दैट इज व्हाट विल अफेक्ट द वाई वैल्यू ऑफ वाई डिस्पोजेबल इनकम। अब आ जाइए इन्वेस्टमेंट, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। इफ द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स विल इंक्रीज, राइट, if the demand for capital goods will increase, आई की वैल्यू बढ़ जाए तो एडी बढ़ जाएगा, एडी बढ़ जाएगा तो क्या हो सकती है? एक्सेस डिमांड। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर आई की वैल्यू कम हुई तो क्या होगा? एडी की वैल्यू कम हो जाएगी, मे कॉज डेफिशिएंट डिमांड। कम टू जी, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा, ठीक है, तो एडी बढ़ी, एडी बढ़ी मे कॉज एक्सेस डिमांड, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड may cause deficient demand, right? Come to net export. Net export में if the value of export will increase, ठीक है, without any change in import at this moment, तो क्या होगा आपका? या with a fall in the value of import, increase in export and decrease in import will increase the value of net export, right? ये export हमारा बढ़ गया और import कम हुआ तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। नेट एक्सपोर्ट बढ़ा तो हमारा एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो मे कॉज एक्सेस डिमांड। सिंपल, राइट? यहाँ जाइए, नेट एक्सपोर्ट में यहाँ पे एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी? कम, और इंपोर्ट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, राइट? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल डिक्रीज नेट एक्सपोर्ट। समझ में? नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू कम हो गई, नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू बच्चों कम हुई तो क्या हुआ? एडी कम, ठीक है, एडी कम हुआ तो मे कॉज डेफिशिएंट डिमांड। सिंपल, राइट? तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स बने आपके? दिस इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिस्पोजेबल इनकम, कैसे? टैक्स रेट। तो फर्स्ट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेकेंड इज टैक्स रेट, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, fourth is government expenditure, fifth is export, next is sixth is import, and here it may, if suppose government is making deficient demand, deficit budget, deficit budget मतलब कि गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा कर रही है और रेवेन्यूज का कम है, यानी कि हमसे कम पैसे लेके मार्केट में ज़्यादा पैसा दे रही है, तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और परचेजिंग पावर बढ़ गई तो एडी बढ़ जाएगा, एडी बढ़ गया तो एक्सेस डिमांड। यहाँ पे सरप्लस बजट बनाएगी गवर्नमेंट, ठीक है, सरप्लस बजट। अब सरप्लस बजट से क्या होगा बच्चों? कि आपका गवर्नमेंट क्या कर रही है? खर्च कम और रेवेन्यूज की ज़्यादा है, राइट? रेवेन्यूज ने लिया सपोज 100 करोड़ और खर्च किया सिर्फ 80 करोड़, तो क्या हुआ? 20 करोड़ के बराबर मार्केट में पैसा गया ही नहीं, ठीक है, कम हो गई मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई कम हो गई तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई, परचेसिंग का पावर कम हो गई तो एडी कम हो जाएगी, एडी कम हो जाएगी तो डेफिसिट डिमांड हो जाएगा। तो ये क्या आपके रीजंस विच मे कॉज एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। तो इसको समझना है किससे? इस इक्वेशन से। सिंपल पॉइंट लर्न करने नहीं लगना है, आपको 4 कंपोनेंट्स एडी लेना है और उससे आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है। इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे भी पता है फेस्टिवल का समय चल रहा है, but I want that everybody at least should give 10-20 minutes to study for economics so that everybody will get good marks, right? Thank you and have a nice day.